Okay. So last time we introduced vectors in n dimensions, or n-dimensional vectors. So I quickly revise what we did last time, and then I'll proceed towards our present topic, which is actually the linear vector spaces. So in the last lecture, we discussed n-dimensional vectors, and we defined n tuple, which is given by uh, this expression where we have n components x1 x2 up to xn. This is called n tuple, and this is the point representation of an n dimensional space. Then we represented then we defined n space, which is the collection of all n tuples. For example, we have a collection of tuples, n tuples, and there is a lot of there are a lot of n tuples in there. Then that set of n tuples is called n space, not a vector space, but simply n space here. Then this is the vector representation of the n tuple. For example, this is the n tuple which has n components, just like in two dimension we have xy. So the vector form is xi plus yj. Similarly, this is the vector form of this n tuple. It has n components, so x1 x2 up to xn, these are the components, and e1 e2 up to en, these are the unit vectors along different directions. So here are n components and n unit vectors for an n dimensional vector. Then there are some important properties that an n tuple can be represented as a vector as well. For example, this one, if you take the distance of the n tuple from the origin, then you will get the vector form, which will be this vector for n tuple. This is what we discussed last time. And then after that, we discussed special example. For example, if n is equal to 1, then we have R1 space. And then we had some other examples. For example, if n is equal to 2, then we have the usual two-dimensional space. And we saw this in detail last time. Then for n equals 3, we have the usual three-dimensional space. For n is equal to 4, we have a four-dimensional space. And as we discussed last time, this is extensively used in special theory of relativity, where all the vectors are in four dimensions. And mm, there is something else which is called matrices, and those are 4 by 4 matrices, are tensors of rank 2. Next, we discussed for n is equal to 6, we have this R6 space, and this is called the in connection with the physics, this is called the phase space in classical and statistical mechanics. And similarly, Hilbert space is an infinite dimensional space in general, and n-dimensional space in particular cases. Then after that, we define some operations on vectors. For example, when two vectors will be equal, when let's suppose we have two vectors u and v, and these two are n-dimensional vectors. So when these vectors will be equal, they'll be equal only when the components are equal. For example, this component is equal to this component. Second component of this is equal to second component of this. Third component of this is equal to third component, and nth component of u is equal to nth component of v. Then if they are equal component by component, then the two vectors will be equal. So, and then after that, we define vector addition. How to add n-dimensional vectors. N-dimensional vector addition is just like two-dimensional, three-dimensional vector addition. You just suppose you have these two vectors, and these are the components, and this is another vector, and these are the component. And I'm going to adding these two, like u plus v will be equal to u1 plus v1. First component plus first component of the second. First component of this one and plus first component of this one. So u plus v is equal to u1 plus v1. This is the first component of the combined vector. Then u2 plus v2. This is the combined component of the u plus v vector. And finally, the nth component of u is added with the nth component of the second vector, and you get the resultant vector. You may give it some special name like w or z or whatever you call. Uh, Abdul Wajid, please unmute yourself and ask question. You have raised hand. सर ये प्रीवियस स्लाइड जो था सर, एक्सक्यूज मी, ये आपकी आवाज़ प्रीवियस बहुत स्लाइड जो बहुत था सर, ये कम आ रही है जी। सर ये प्रीवियस स्लाइड जो था सर। जी जी, प्रीवियस स्लाइड पे मैं चला जाता हूँ। जी, आप क्वेश्चन पूछे उसमें।
सर इसमें R2 है सर, इनकी जगह 2 है सर, तो ये स्पेस कंसीडर होगा या प्लेन सर? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए, है सर। अब मैंने R1 को भी स्पेस कहा हुआ है, तो यस स्पेस सर। इज जस्ट अ नेम इन दिस केस। ठीक है, आप उस चीज़ के साथ कंफ्यूज ना हो कि आप वो थ्री डायमेंशनल स्पेस का ना सोचें। सिमिलरली आप R4 भी हमने कर लिया, R6 भी कर लिया और Rn भी कर लिया, और हम सबको स्पेस ही कह रहे हैं। तो आप इस चीज़ को थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स के साथ कंफ्यूज ना करें। समझ रहे हैं बात? यस सर, ठीक हो। स्पेस का लफ्ज़ मैंने R1 के लिए भी यूज़ किया है, और 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। सो इफ R इज इक्वल टू 2 इन जनरल, ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, दैट इज प्लेन। ठीक है। सर यहाँ पर हम स्पेस किस तरह डिफाइन करते हैं सर? स्पेस किस तरह डिफाइन करते हैं? इस सर स्पेस तो मतलब जिससे ये मतलब एक ये क्लोजी कंपोनेंट होते हैं सर आप ना। आपके हमने जिस तरह से यहाँ पर कर लिया ना कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये ये इन स्पेस का डेफिनेशन क्या है? जिसमें n डायमेंशनल वेक्टर का एक सेट हो। अब सेट आप इसको किसे कहते हैं? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यस सर। ठीक है। तो अगर अगर हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर्स हैं और बहुत सारे हैं और उसका एक कलेक्शन है, तो हम उसको कहेंगे n स्पेस, सिंपली, कि बहुत सारे n डायमेंशनल वेक्टर्स का एक मजमुआ है, एक सेट है, हम उसको n स्पेस कहेंगे। बस ये स्पेस, इस स्पेस का आपका 3D और उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज जस्ट अ नेम फॉर दिस डेफिनेशन। आई होप द कंफ्यूजन विल बी क्लियर। यस सर, ठीक है सर। यस सर। ठीक है। देखें, मैंने यहाँ पर भी R1 के लिए भी मैंने वन स्पेस लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है। दिस इज जस्ट द नेम, जनरल डिस्कशन हो रही है। ठीक है। यस सर, सो ठीक है सर। देन हम वेक्टर्स के ऊपर देन वी डिड ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन को डिफाइन कर लिया, एंड देन आफ्टर दैट difference of the two vectors, this is exactly the same thing but with a minus sign, and after that we define scalar multiplication. So I want you to pay particular attention to these two operations, vector addition and scalar multiplications. These two operations are very important for linear vector spaces in our coming lecture today. So scalar multiplication is defined in a way that if you have this vector u1 with components u1, u2 up to un, and you have a scalar number c. So scalar multiplication is just if you are multiplying this vector with a scalar c. So uh, according to the scalar multiplication rule, every component will be multiplied with the scalar number. So you are multiplying the vector with the scalar. So to multiply a vector with a scalar, you have to multiply every component with that scalar number to get the result. So this operation is called scalar multiplication, and this will be really helpful to understand the idea of linear vector spaces along with this vector addition. These two operations will define our vector space, and you'll see this today. So we have defined a lot of operations in this discussion, but these two will be important: vector addition and scalar multiplication. Then we define सर negative of a vector. GG. सर इसको हम क्यों स्टडी करते हैं सर, इसका फायदा क्या है? We are going to set a background for linear vector spaces, and then you will see कि linear vector space का क्या advantage है. ये सारा कुछ जो डिस्कशन है, ये जो हम definitions यहाँ पर सीख रहे हैं, this is actually a background for linear vector spaces. Or linear vector space is a very useful thing. You will see the advantage of linear vector space once we are done with the course, and once you go deeper into quantum mechanics courses. Then we started zero vector. We defined zero vector. Zero vector is defined as having every component equal to zero. And then uh, here are some important notes. Okay, zero vector is always known as additive identity in Rn. If this is our zero vector and we add this vector with any vector, we will get the same vector back. So this is called additive identity. This is just the name for the zero vector. So zero vector is also known as additive identity. Similarly, negative of a vector, if you have a vector u and you have a vector minus u, so this minus u, which is the negative of the vector u, this is also known as additive inverse.
So these are just name, and they'll be these names will be used in the definition of linear vector spaces. So this is what we did last time. We did two important things. We defined n-dimensional vectors, and then we studied some special examples of those n-dimensional vectors, and after that we defined certain operations on n-dimensional space. So these are those operations. So these are the important things we did last time. Then we, at the end, we said that an n-dimensional vector can be represented by a column matrix or a row matrix. But as I told you, that we will use a column matrix for n-dimensional vector. Now, coming towards today's topic, linear vector spaces, and this is the in this lecture we will formally define linear vector spaces. So अगर आपको पिछले लेक्चर से कोई क्वेश्चन है, आपने उसको स्टडी किया हुआ है, so please ask those questions, and then otherwise I'll proceed towards today's lecture. तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, please unmute yourself and ask your question. सर जी जी. ये मोमेंटम के किस तरह 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं? हम अगर एक्स वाई जेड के प्लेन में कह दे तो हमारे पास डिस्टेंस है, उसके तो समझ में आ जाता है कि डिस्टेंस के 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. मोमेंटम के किस तरह कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं? मतलब आपने कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लेते हैं. If a particle is moving in 3-dimensional space, तो उसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे. ठीक है? The particle is moving in xy space, xy जो 3-dimensional space है, then उसके xyz भी चेंज होंगे. And if particle किसी लाइन के ऊपर जा रहा है, किसी स्पेस के ऊपर जा रहा है, so उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम 3-dimensional में किस तरह होता है? मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, px the momentum in the x direction, py momentum in the y direction, and pz momentum in the z direction. जिस तरह पोजीशन वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है, पोजीशन वेक्टर हैज x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट. सिमिलरली वेलोसिटी हैज 3 कंपोनेंट, vx, vy and vz. So if you multiply velocity in the x direction with the mass, you will get momentum in the x direction. When you multiply momentum velocity in the y direction with the mass, you will get momentum in the y direction, and so on. So you have 3 components of momentum and 3 components of position. So that combined space is a 6-dimensional phase space, and that idea is usually very useful in classical mechanics. Okay, sir. Any other question? कोई नहीं है. So let's begin the formal definition of a linear vector space. Okay, linear vector space है क्या? So let's suppose we have a set V. Suppose we have a set जिसके अंदर जिसका नाम है V, और उस सेट के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं. और when I say vector, तो I'll mean के general vectors, n-dimensional vectors. और बाकी हम अगर n-dimensional vectors के लिए इसको define कर ले, then n is equal to 2 और 3 और ये सारी चीजें उसके special cases आएंगे. So we have a set जिसका नाम है V. जिस तरह मैथमेटिक्स में आप सेट डिफाइन करते हैं, तो V is a set. लेकिन इस सेट के अंदर क्या है? इस सेट के अंदर डिफरेंट वेक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक वेक्टर है u, दूसरा वेक्टर है v, और तीसरा वेक्टर है w. नाउ नोट दीज थिंग्स कि यहाँ पर जो नाम है सेट का वो है कैपिटल V, और ये बोल्ड नहीं लिखा हुआ. सो दिस इज जस्ट द नेम ऑफ द सेट. और इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं, एक u वेक्टर है, एक v वेक्टर है, और एक w वेक्टर है. या इसके अंदर जनरली बहुत सारे वेक्टर्स पॉसिबल है. तो इस सेट के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं. अब उन वेक्टर्स के ऊपर 2 ऑपरेशंस डिफाइंड है. उन वेक्टर्स के ऊपर 2 ऑपरेशन हम कर सकते हैं. और वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? वेक्टर एडिशन हम कर सकते हैं इन वेक्टर्स के ऊपर, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. और ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने आज थोड़े से रिवाइज भी कर ली, और पिछले लेक्चर में हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी की थी कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या. तो जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं, या जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जिसका नाम V है, उसके ऊपर 2 ऑपरेशंस डिफाइंड है. ये हो सकते हैं, उनमें एडिशन पॉसिबल है और उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है. तो इस सेट के अंदर वेक्टर जो है वो u है, v और w है, और कुछ स्केलर भी हमारे पास है. और इस केस में स्केलर्स
है जनरली C और D कोई स्केलर्स हैं, या C1 और C2 भी कोई स्केलर है, अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, बट एट द मोमेंट हम खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारे स्केलर नंबर्स हैं दीज आर रियल नंबर्स, ये अभी हम कम्प्लेक्स नहीं ले रहे हैं, बाद में हम इसको जनरलाइज करेंगे, हम इनको कम्प्लेक्स भी ले लेंगे। तो जो इसके अंदर ये जो सेट है, इस सेट के अंदर दो चीज़ें मौजूद है, वेक्टर्स हैं कुछ, ये वाले बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और उन वेक्टर्स के ऊपर और कुछ स्केलर भी हमारे पास है, ये C और D, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अब ये जो हमारा सेट है, ये जो V सेट है जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर स्पेस कब बनाएंगे? तो ये वेक्टर स्पेस तब बनाएंगे जब कुछ एक्सियम्स हैं, कुछ प्रोपोजिशंस हैं, जब ये सेटिस्फाई हो, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज ये है, ये वाली। फर्स्ट, एज वी सेड के इन वेक्टर्स के ऊपर दो ऑपरेशन पॉसिबल है, एडिशन इनके अंदर हो सकता है और इनके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो अब एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? अगर हम इनमें से, अगर इस सेट के अंदर जितने वेक्टर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे वेक्टर्स इसके अंदर पड़े होंगे, हमने यहाँ पर उसमें से कोई जनरल 3 लिए हुए हैं कि U, V और W, इस सेट के अंदर 3 वेक्टर्स हम ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो अगर ये 3 इसके अंदर वेक्टर्स हैं और हम इन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन की क्या 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 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सो नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर इस V जो सेट है, इसमें से अगर मैं कोई से दो वेक्टर्स ले लूँ U और V, और इनको मैं ऐड कर लूँ, तो मुझे कोई नया वेक्टर मिलेगा इनके एडिशन से। तो अगर दो वेक्टर्स ऐड हो जाएं और उससे कोई नया वेक्टर मिले, तो वो नया वेक्टर भी आपके इस V के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, या क्लोजर अंडर एडिशन, या क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो क्लोज अंडर एडिशन का मतलब ये है कि ये जो सेट V है जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो उनमें से अगर आप कोई से भी दो वेक्टर ले ले और उनको ऐड कर ले, तो उनका जो सम है वो भी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैं सिंपल अगर वेक्टर्स को छोड़ दे और सिंपल मैं एक सेट की बात कर लूँ कि मेरे पास एक सेट है और उसके अंदर है रियल नंबर्स है 1 2 3 4 5। तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर लूँ तो उसका जो सम बनेगा 3, तो 3 इस सेट के अंदर मौजूद है। इसका सिंपली मतलब यही है। समझ रहे हैं या नहीं? ये पहला जो एक्सियम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास एक सेट है और उसके अंदर डिफरेंट वेक्टर्स हैं, तो अगर उन वेक्टर्स में से कोई से भी दो आप ले ले, तो उन दो का जो सम, जो नया वेक्टर बनेगा, वो भी उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए, उसका V के अंदर होना लाजमी है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर जस्ट फाइन डिटेल्स, कि ये कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी सेट के अंदर वेक्टर्स हैं और उनमें से आप कोई से रेंडमली कोई से दो वेक्टर पिक कर ले और उनको ऐड कर ले, तो जो उससे आंसर मिलेगा वो भी उस स्पेस के अंदर मौजूद होना चाहिए। सो यू हैव टू नोट दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। बाकी सिंपल है। फिर कुछ एडिशन की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है। सो अगर ये क्लियर नहीं है, सो प्लीज आस्क क्वेश्चन। ये अगर क्लियर होगा देन आई विल प्रोसीड। ये क्लियर है? हर एक को क्लियर है? ठीक है। सो नेक्स्ट, ये फर्दर जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये भी एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं। उस सेट, ये जो सेट हमने लिया हुआ है जिसको हम वेक्टर स्पेस क्लेम कर रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस होगा, तो उसमें अब और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करेगा, कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए, u प्लस वी शुड बी इक्वल टू v प्लस u, तो किसी सेट को वेक्टर स्पेस हम तभी कहेंगे कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे हो। सिमिलरली उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओबे होनी चाहिए। अगर हम 3 वेक्टर्स ले ले और इन तीनों वेक्टर को इस ऑर्डर से ऐड कर ले कि u प्लस वी पहले कर ले और बाद में हम v प्लस w पहले कर ले और बाद में हम उसके साथ u ऐड कर ले, तो ये एक साइड है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को पहले ऐड कर ले, लाइक u और v को पहले ऐड कर ले और बाद में इसके साथ w ऐड कर ले, तो इन दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारा कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं जो v हमने डिफाइन किया हुआ है, तो उसके अंदर एडिशन की ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो लाजमी है, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओबे होनी चाहिए। फिर फोर्थ जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, v has a zero vector such that u plus 0 is u,
एक्सक्यूज मी, हाँ, सो ये जो आपका सेट है जिसको आप क्लेम कर रहे हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस है, इस सेट के अंदर जीरो वेक्टर का होना भी लाजमी है, कि जीरो वेक्टर इस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए, इसका होना लाजमी है। अगर ये नहीं है तो फिर भी आपका जो सेट है उसको आप वेक्टर स्पेस नहीं कह सकते। और इस जीरो को, एज वी सेट के, इस जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो आपके सेट के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, और एडिटिव आइडेंटिटी मीन कि जीरो वेक्टर भी आपके स्पेस के अंदर होना चाहिए। देन 5 जो प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी u in v there is a vector in v denoted by minus u। अगर कोई वेक्टर u है आपके स्पेस के अंदर तो उसका माइनस भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। मतलब अगर अगर कोई सेट है, लेट सपोज उसके अंदर नंबर्स है, अगर लेट सपोज 5 नंबर उस सेट में है तो उसमें -5 का होना भी लाजमी है। अगर उसके अंदर 6 है तो -6 भी होना चाहिए। ये मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जस्ट इन केस। लेकिन हमारा जो यहाँ पर सेट है ये नंबर्स का सेट नहीं है, ये सेट वेक्टर्स का सेट है। और इन वेक्टर्स में, इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स मौजूद हैं इस सेट के अंदर, हर एक वेक्टर का माइनस का होना भी लाजमी है। और जब वेक्टर और उसका माइनस ऐड होते हैं, u प्लस माइनस u, तो आपको ये जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। हमने जिस तरह स्टार्ट में बताया है अभी डेफिनेशन के अंदर कि वेक्टर एडिशन वैलिड होना चाहिए एक वेक्टर स्पेस के ऊपर, और वेक्टर एडिशन की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सर यहाँ पर जो हम वेक्टर स्पेस वी ले रहे हैं उसमें बहुत से वेक्टर है सर, ये फाइनाइट या इनफाइनाइट है सर? उसका ये डिपेंड करता है, ये हम आगे देखेंगे कि हमारा वेक्टर स्पेस फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ये डिपेंड करता है, आगे हम पढ़ेंगे जब हम वेक्टर स्पेसेस के डायमेंशंस पढ़ेंगे, ठीक है। एट द मोमेंट ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब हम सिर्फ इसको डिफाइन कर रहे हैं, वो फर्दर डिटेल्स हैं कि वेक्टर्स का डायमेंशन क्या होगा, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं। देन मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और वो ये है, क्योंकि हम दो ऑपरेशन देखेंगे ना हमारे वेक्टर स्पेस के ऊपर, वेक्टर एडिशन का होना और वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का होना लाजमी है। सो वेक्टर एडिशन हमने देख लिया, और ये 5 प्रॉपर्टीज जो हैं ये वेक्टर एडिशन की है। अब फर्दर 5 प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी होनी चाहिए। तो उसमें से पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं कोई सा वेक्टर ले लूँ c, कोई सा वेक्टर ले लूँ u, और उसको किसी स्केलर नंबर c से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा वेक्टर u है जो कि v सेट के अंदर मौजूद है। तो अगर ये वेक्टर मैं ले लूँ और इसको किसी स्केलर नंबर c से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे नया वेक्टर मिलेगा। अब ये नया वेक्टर भी आपके वेक्टर स्पेस में मौजूद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जिस तरह पहली वाली प्रॉपर्टी ये थी, ये वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता था क्लोजर अंडर एडिशन। अब इस चीज को कहा जाता है क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि आपका जो स्पेस है उसको क्लोज होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि उस स्पेस के अंदर कोई सा भी वेक्टर आप उठा ले और उसको किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, अपनी मर्जी का स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर ले, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो भी आपके स्पेस में मौजूद होना चाहिए। सो ये इन्हीं एक्सियम्स के ऊपर आपका वेक्टर स्पेस बिल्ट अप हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। देन 7th प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, कि अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं u और v, और उसके साथ आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी c नंबर का कर रहे हैं, तो अगर आप दोनों वेक्टर्स को पहले ऐड कर ले और बाद में c से मल्टीप्लाई कर ले, या आप वेक्टर को पहले वेक्टर को c से मल्टीप्लाई कर ले और दूसरे वेक्टर को भी c से मल्टीप्लाई कर ले और बाद में ऐड कर ले, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक वेक्टर u है और उस वेक्टर u को आप अलग अलग दो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप उसको d स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप उसको c स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों स्केलर्स को ऐड कर लें और बाद में इससे मल्टीप्लाई कर लें, या पहले अपने वेक्टर को एक से मल्टीप्लाई कर लो और दूसरे बाद में अपने वेक्टर को दूसरे स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद ऐड कर ले। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी वैलिड होनी चाहिए आपके स्पेस के अंदर। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उबे होनी चाहिए। वो ये है कि अगर आप एक वेक्टर को दो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से,
एक डी स्केलर है और दूसरा सी स्केलर है। तो अगर आप इस वेक्टर को पहले डी स्केलर से मल्टीप्लाई कर ले और बाद में सी से मल्टीप्लाई कर ले तो इसका जो आंसर बनेगा, और अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर ले और बाद में वेक्टर के साथ, अगर इन दोनों स्केलर्स को पहले मल्टीप्लाई कर ले और बाद में वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इन ये आंसर भी दोनों साइड का सेम आना चाहिए। मतलब ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर मैटर करता है तो फिर लीनियर वेक्टर स्पेस नहीं होगा। लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। एंड फाइनली, अगर किसी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर u है और अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपको वही वेक्टर मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्केलर आइडेंटिटी। जिस तरह यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है कि 0 किसी वेक्टर के साथ ऐड करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारा ये जो स्लाइड है, इस पे हमने लीनियर वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर लिया। लीनियर वेक्टर स्पेस जो कि कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं, और उस वेक्टर को उस कलेक्शन ऑफ वेक्टर को हमने v का नाम दिया था, और उसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स थे, u, v, w, z, बहुत सारे इसके अंदर वेक्टर्स थे। तो उन वेक्टर्स के ऊपर ये प्रॉपर्टीज ओबे होनी चाहिए। अगर वो वेक्टर्स ये प्रॉपर्टी ओबे करते हैं तो फिर ये जो हमारा सेट है या जो हमारा कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं, इस कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को फिर हम जाके कहेंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। इसके बाद मैं एग्जांपल्स के ऊपर जाऊंगा कि क्या क्या चीजें हमारे पास वेक्टर स्पेस बना सकती है। ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी ओबे नहीं होती, लाइक ये 10 प्रॉपर्टीज हैं, इन 10 में से मैं बता दूं कि ये यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी, एडिशन के रिस्पेक्ट से पहली प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से पहली प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी उनके सब एक्सटेंशन है कि दो वेक्टर्स का ऐड होना, जो नया वेक्टर बनेगा वो भी स्पेस के अंदर होना चाहिए। सिमिलरली एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेना, जो नया वेक्टर बनेगा वो भी स्पेस के अंदर होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी ये सब उसके अंदर एक्सटेंशंस हैं। तो वेक्टर स्पेस दो प्रॉपर्टीज से बनता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन ऑफ वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जो कंबाइनली मिलके 10 एक्सियम्स बनाते हैं। और ये सब, इन सब प्रॉपर्टीज का होना लाजमी है एक वेक्टर स्पेस के लिए। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज आई एम स्विचिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर एग्जांपल। जी सर, यहाँ पर जो हम स्पेस ले रहे हैं, ये सर ये बस वैसी टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम ये ले रहे हैं या टर्मिनोलॉजी उसका कोई एग्जैक्टली, फिजिक्स? no, this is just terminology as I mentioned in a response to an earlier question कि यहाँ पर स्पेस का मतलब आपका यस सर, ज्योमेट्रिकल स्पेस नहीं है। दिस इज मैथमेटिकल स्पेस, दिस इज यस एब्स्ट्रैक्ट सर, स्पेस। ये वेक्टर्स का कलेक्शन है, ओके लेकिन सर, उस वेक्टर का जो कलेक्शन है, वेक्टर का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और वो ये है। ठीक है, यस सर, या अब क्लियर, थोड़ा सा इस आइडिया को और जनरलाइज कर लेते हैं। अगर वेक्टर्स की बजाय कुछ भी हो जो ये 10 प्रॉपर्टीज ओबे करे, वेक्टर्स की बजाय अगर फंक्शंस हो हमारे पास, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हो हमारे पास, और वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस ये सारी प्रॉपर्टीज ओबे करे, ये वाली, तो हम उसको क्या कहेंगे? उन फंक्शंस को भी हम स्पेस कह सकते हैं, लेकिन हम उसको वेक्टर स्पेस नहीं कहते, हम उसको फंक्शन स्पेस कहते हैं, क्योंकि उसके जो मेंबर्स हैं वो वेक्टर्स नहीं है बल्कि वो फंक्शंस है, और वो फंक्शंस फंक्शन, हमारे यस पास ये सर, सारी प्रॉपर्टीज ओबे करते हैं। तो ये आपका लीनियर वेक्टर स्पेसेस का डेफिनेशन है। अब कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं लीनियर वेक्टर स्पेसेस के, बट आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो बल्कि एक उस स्लाइड के अंदर हम थोड़ा सा 5-10 मिनट तक डिस्कशन हम कर सकते हैं, वी हैव अ लिटिल टाइम, या फिर लेट मी कंटिन्यू, अगर मीटिंग खत्म होता है तो खुद ही खत्म हो जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। जब भी खत्म होगा तो बस उसके बाद मैं फिर से नया मीटिंग लेके कंटिन्यू कर लूँगा। सो this is the definition of linear vector spaces, that a linear vector space is a collection of vectors, and those collection of vectors will obey certain properties which are listed as here. Now, examples of linear vector spaces are simply examples of vector spaces. Number one, पहला जो एग्जांपल्स है n टुपल्स, जिस तरह हमने पहले लेक्चर के अंदर और आज के लेक्चर में हमने रिवाइज कर लिया कि हमारे पास जो n डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, जो उसका कलेक्शन है, n डायमेंशनल वेक्टर्स के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और ये Rn को अब मैं v का नाम दे रहा हूँ। v इज माय वेक्टर स्पेस, जो मेरा नोटेशन है। तो अगर v Rn के बराबर है, Rn मीन के n टुपल्स का फुल कम्बिनेशन, के सारे n टुपल्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो इस कलेक्शन का, ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है इन n टुपल्स का, ये एक स्केलर
ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है। कैसे बनाता है? ये दोनों प्रॉपर्टीज ओबे करता है। ये वेक्टर एडिशन भी ओबे करता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ओबे करता है। और वो कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, इस स्पेस में से मैं कोई से जनरली दो वेक्टर उठाता हूं, u और v सपोज, या कोई भी जनरल नेम आप यहां से उठा ले और उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर ले, तो उससे जो नया वेक्टर बनेगा वो ये होगा। लेट्स सपोज ये w वेक्टर बनता है। अब ये w वेक्टर भी Rn के अंदर मौजूद होगा, और इस तरह होता भी है कि आप किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर्स में से कोई से भी दो पॉइंट या दो वेक्टर्स उठा ले और उन दोनों को आप आपस में ऐड कर ले, तो जो नया वेक्टर बनता है वो आपके स्पेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। सिमिलरली अगर आप उसमें से कोई सा भी वेक्टर उठा ले, u वेक्टर आपने उठा लिया और उसको आप किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले वाली स्लाइड पे हमने स्केलर को c और d से डिनोट करा। अब मैं यहाँ पर स्केलर को k से रिप्रेजेंट करा रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप किसी भी कोई सा भी नाम दे सकते हैं स्केलर को। अब मैं इस वेक्टर को k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो ये होगा, जो नया n टुपल बनेगा वो ये होगा। अब ये नया n टुपल भी इसके अंदर मौजूद होगा, और ये होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि n टुपल का जो स्पेस है दैट इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। वो हमारा जो n टुपल्स हैं, n टुपल्स का जो कलेक्शन है, जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे n टुपल जिसके अंदर हो, तो वो हमें एक वेक्टर स्पेस बनाता है। अब इसके अंदर एक स्पेशल वेक्टर्स का होना जरूरी है, और वो स्पेशल वेक्टर्स ये है, इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, ये एंड ये इसके अंदर कैसे मौजूद होगा? अगर मैं अपना वेक्टर ऐसे चूज कर लूं कि जिसके सारे कंपोनेंट 0 0 0 0 0 हो, तो वो भी इसके अंदर है, और ये प्रेजेंट है Rn के अंदर। Rn के अंदर इस तरह का टुपल प्रेजेंट है, n टुपल, कि उसके सारे कंपोनेंट्स 0 0 0 हो, और उसके अंदर ऐसे भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, लाइक अगर ये